ट्रैक आउट कर। आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये पहली ऐसी कोशिश है कि सरकार हम बाकी जगह से एक्सपर्ट बुलाए हैं कि अगर इस फाइलेरिया की बीमारी को हम डॉक्टर्स और मरीज भी अब खुद जान लें, खुद अपनी केयर लेने लगे, तो उससे मुझे लगता है कि हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में जो आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम है उसकी सक्सेस की तरफ ये कदम एक्सेलेंट इनिशिएटिव, और ऐसे इनिशिएटिव मैं समझती हूँ सभी डिस्ट्रिक्ट यूपी जो जिनमें एंडेमिक है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ऐसा समझा जा रहा है कि एंडेमिक नहीं है, वी नीड टू रियली डू समथिंग अबाउट मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। एंड जो एमडीए जिन जनपदों में चल रही है वहाँ एमडीए तो चलेगी, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं समझती हूँ आप सभी लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से फेमिलियर हैं, तो अपने कंट्री में इसमें कलर्स उतने अच्छे से आ नहीं रहे हैं, लेकिन 255 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एंडेमिक माने गए हैं। और लिम्फेडिमा केयर में कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं कैन इम्पार्ट सम नॉलेज, यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टेटेड इट, बट थोड़े से बेसिक्स अगर समझ आ जाए तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि हम इसमें केयर का प्रोसेस क्या है। वो बेसिकली लिम्फेडिमा इज अ मिसमैच बिटवीन द बॉडीज lymphatic flow and the capacity to make it. So it's something like you can have flooding if there is a dam. यदि आपने रास्ता रोक दिया तो lymphatic blockage is the dam. Or if there is excessive rain, which means अगर बनी fluid ज़्यादा रहा है, ज़्यादा कब बनता है? Cardiac disease, renal disease. These are some of the things. But what really makes a combination of the two is infection, जो आपने बहुत clearly delineate कर दिया है। और मैं थोड़ी सी आगे वाली स्लाइड में बताऊं कि फाइलेरिया एक्चुअली लिम्फेडिमा कॉज कैसे करता है, which will help you understand the treatment protocol. So this is a lymphatic anatomy. I think all of you are doctors. I don't really need to go through this. Lenotherm, vulva, other places, and also topical eosinophilia. This is an important slide which I want to talk about. Basically, इन्होंने grading तो की है, but grading में क्या actually background में हो रहा है, that is important. The earlier grades are what are called reversibility, but in the higher grades अब ये होता है कि जब secondary infection और radial attacks हो जाए वो खुद ही worm को मार देते हैं। So worm is now no longer, the patient is no longer infective because worm is already dead. The attacks themselves kill the worm. So now you get lymphatics which are dilated, tortuous, maybe missing, and dermal backflow. That is ऊपर से नीचे lymph गिर रहा है, and this requires now lifelong care. Now it has become a chronic disease. Previously it was a reversible disease. Now it's a chronic disease, just like diabetes. The disease will not disappear, so you will require lifelong maintenance. के कुछ जगह पर collection होती है called lymphatic lakes. उन lakes के अंदर potential fluid and potential culture matter always remains. आप थोड़ी सी neglect करोगे तो it can start. The support or scaffold. Now, why do we give bandages? Why do we give stocking? Actually, it reinforces the scaffold. तो अगर वो separation हो जाए because of fluid, your pumping action goes down. So that's the importance of this thing. But we disagree slightly with sir when he said about rest and all that. We think that a working person you cannot ask him to rest for that reason. Not that it's not to be done, but you as a person has to work. Person has to earn. तो उसको रेस्ट की जगह अगर हम बैंडेज और सपोर्ट सिस्टम के साथ उसको हम करें ना, और एक्सरसाइज विल आल्सो बी मच मोर बेनिफिशियल इफ द बैंडेजेस आर ऑलरेडी इन प्लेस. सो दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस इन अप्रोच दैट वी आर फॉलोइंग टू व्हाट द WHO is and the guidelines are, and this I think is one critical difference for the cause of success in this, right? So instant examination सर ने सारा बता दिया है, इनमें कुछ टेस्ट हम करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए पीएच बैलेंस सोप से वॉश करके फिर प्रिवेंशन है, तो उनका वो यूनिवर्सल यूज़ है, इसलिए
वो टाइम उसका बहुत कॉशियस रखेंगे कि 20 to 30 mmHg रहे एंड विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स कंप्लीट वो अपने आप बंद हो जाए। वो हमारे पेशेंट्स के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब तक ये इसको होल्ड करके रखेगा, जब तक अंदर का जो टिश्यू प्रेशर है वो रिड्यूस हो, उसे टाइम चाहिए। We do not want to leak the fluid and push it to other direction. We want it to get reabsorbed where it is. For that we need longer duration. लेकिन प्रेशर दे रहे हैं, ये कितना देना है और कैसे देना है पेन के हिसाब से करते हो। प्लस ये कि अगर अपर एक्सट्रीमिटी या पोस्ट मिस्टेक्टमी है तो फिर आप उनको कम Not according to the edema, like it's more like mild edema, moderate Mild edema, edema is pitting or not? fitting or not. ठीक। हालांकि नॉर्मली ग्रेड 1 इज से स्टेज 1 इज पिटिंग नॉर्मली, तो उसमें कमी होगा। तो उस बैंडेज तो आपने एक बार बांध दी, तो व्हाई डज इट कीप वर्किंग? कि इट हेल्प्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द वीनस चैनल्स। जैसे इट्स अ पम्पिंग इफेक्ट जो हम बता रहे हैं। Once we are sure that no further progress is taking place, now the limb has reached a stable size. Okay, some of the fibrosis will mean that limb will never be back to absolutely normal size. So once we reach that state, then we decide whether they need some surgery for the excessive skin pieces. And to accelerate that, we also do a lodovenous treatment, because that helps the fluid reabsorption faster. So इस compression therapy का effect भी जल्दी होता है, especially a person who's come from far. बेसिकली छोटा सा वो कर सकते हैं, उससे ये फ्लूइड बड़ी जल्दी गायब होगा, स्पेशली अ पर्सन हूज कम फ्रॉम फार कैन डू इट। देखो ऐसे है। सर पहले आप अपना नाम बताइए। I am Dr. Pradeep Srivastava, superintendent at the block level CSC Tambol. CSC Tambol, block beta. ब्लॉक में। तो मुझे ये बताइए, जो हमने आज यहाँ पे वर्कशॉप करी है, आपको लगता है ये बेनिफिशियल है? Yes मैम, इसमें अभी तक हम लोगों को जो भी एज ए मेडिकल भी हम लोग जो प्रैक्टिस में हैं, इस टाइप की अभी तक हम लोगों की एक भी वर्कशॉप नहीं हुई है। तो हम लोग केवल MDA जो हम लोग का प्रोग्राम चलता है उसके बारे में ही पता है, लेकिन हम जो उस पेशेंट के लिए और भी कई चीज़ें कर सकते हैं जो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसको, और उसको मतलब एलिमिनेशन में हम लोग जो हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रहा है, जो कि हम एक पेशेंट को जब तक पूरा ठीक नहीं कर लेते पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि रिकरेंस इसमें इतने ज़्यादा है। 6 महीने 1 साल बाद वो वापस से मेरे पास आता है वो पेशेंट कि मुझे फिर से वैसे ही हो गया। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी हम लोग तो इवन अगर जब उसको रिकरेंस हो जाता है तो हम लोग के अलावा रेफरेंस के अलावा और कोई हमको नहीं मिलता कि हम सर्जन के पास उसको भेजते हैं। पेशेंट वहाँ नहीं पहुँच पाता है, उसकी क्या मतलब फॉलोअप नहीं हो पाता है। लेकिन यदि पेशेंट सर्जन के पास पहुँचते भी